gives me great pleasure to introduce our esteemed speaker, Dr. Vijay Singh, a distinguished scholar and educator from the Department of Mathematics, Kirori Mal College, University of Delhi. Dr. Singh holds a doctorate degree in mathematics and has further advanced his academic journey through postdoctoral research, focusing on some of the most fascinating frontiers of science, cosmology, general relativity, and modified gravity. His work span on the intricate study of cosmological models, making significant contribution to the understanding of our universe, large-scale structures, and evolution. He has published extensively in the renowned international journal, and his research bridges mathematics with high-level theoretical physics. Besides his research excellence, Dr. Singh is a dedicated mentor known for inspiring students through his lectures and guiding research projects and engaging activity in FDP across the country. Today, Dr. Singh will be speaking on the topic Big Bang Cosmological Model, Scientific versus Vedic Perspective, where he will explore the intriguing intersection between modern cosmology and ancient wisdom. Please join me in warmly welcoming Dr. Vijay Singh. Welcome, sir. Okay, thank you, Dr. Gopal Arola. Thank you very much for saying some appreciating words for me. And I would like to let you know the audience that Dr. Gopal Arola sir is my senior. When I joined PhD in Delhi Technological University, so he was already pursuing his PhD in chemistry department, and I joined in mathematics department. We are also friends. But here today, we are here for this academic events. It's 5 days faculty development program organized by Sanskriti University on the Indian knowledge system perspectives on sustainable future. And today's my talk is on Big Bang cosmological model, scientific versus Vedic perspective. So first of all, I will let you know that I am not the Vedic scholar. I am a mathematician. So you may be surprising that how can a mathematician is speaking on Big Bang theory and Vedic perspective of this theory. So the simple idea is the Big Bang cosmological model is based on Einstein's theory of general relativity, which has completely a mathematical form. Because physical laws are written in mathematical language, so that's why mathematician can work in this field. And as far as the Vedic perspective is concerned, so I have being cosmologist, you can say, I have also interest to compare these physical models with just to see with the Vedic point of view. So I found there are so many similarities in both perspectives. So here the purpose is to let you know what are those similarities or what the answer cosmology means scientific research can give, and what the answer which are not given by scientific community, they are already in the our Vedic scriptures. So let me start. Yes, sir. So this is my Gopal sir. There is some this ping message are coming. Can this may be removed? Waiting in the lobby. Some waiting members are showing in my screen. Yeah. Yashwanji, please care. Some actually some persons are joining. That's why this is. Okay, no problem. Okay, no problem. So this is the overview of today's session. So I will talk about very systematically. First of all, I will talk about vastness of the universe. This will be more side of the scientific point of view, but there is a little about I will talk about the Vedic point of view. Then I will discuss about time, that time is relative as we know, and it is relative in the scientific point of view as well as in the Vedic
perspective. And in Vedic perspective, we also call it Kala. And then I will come to know about the Big Bang theory, where in the Vedas it is mentioned as Hiranyagarbha, or it is started from a point that is called Bindu. Then I will discuss little about multi-universe, that cosmologists also have proposed this concept, which is already in our Vedas. And then the concept of the cyclic universe means oscillating model. Cyclic universe means when one universe is vanishing, then it again can originate. And the same concept in our Vedas is known as Srishti and Pralay. Then last one is the matter in the universe, where the dark energy and dark matter are the main ingredients, which actually scientific community even don't know what kind of this energy is. However, they know a little about the dark matter. Whereas the same concept in Vedas is mentioned as subtle elements. So subtle means which our senses cannot perceive. Because our senses cannot perceive this matter, that's why actually we in scientific community they give it name a dark energy or dark matter. So let us begin one by one. Before starting this scientific mathematical, I will not discuss much of mathematics because maybe many participants are not from mathematics background. So just I will present some facts. So first facts about the vastness of the universe. So here you can see here this is our Earth, and here I have put this picture so that our India can be visible over here. And we know we stay in here in some parts of India. So this country is so big that many of us may have not visited abroad. Means we never actually visit any other countries other than India. Some people even may not visit the whole India. Many states they have not visited because the Earth is not very small, but this is very vast even. And if you see beyond the cosmological point of view, so here there is a comparison that this is the Jupiter planet. Here nearly 1,000 Earth-like planet can be fit inside the Jupiter. So this is how the Jupiter is vast. Then come to the Sun. So another comparison is given over here that around 1,300 Jupiter can all fit inside the Sun. So Sun is so big. So these are all planets. However, Sun is an star, and if you compare the Sun with some other stars, so the largest known star is UY Scuti, and in this right hand side you can see this dot is small. Uh, Dot is our Sun, and this is the boundary of the UY Scuti. When I cannot put the whole star in on this screen because it will be so big. If I will put the whole star, then Sun even I cannot put it as a point quantity. So again, if you compare the nearly 5.1 billion Sun can fit inside the this largest star known as UY Scuti. Now come to that. This is the part of our solar system. These stars are the part of our system, and these such kind of stars daily on the daily basis around 275 million new stars born every single day in the whole universe, the known universe or the observable universe. Here is another comparison that here actually I am just trying to present that what is the farthest reached man-made object, that is known as the satellite Voyager 1. Maybe this was very viral in recent social media. So here, this is actually the time. This is the distance from Sun to this Alpha Centauri planet star, and here this distance is not scaled. Rather, you can see here from Sun to Earth, it is 1 unit. So here 1 unit means 1 astronomical unit. So 1 astronomical unit means the distance from Sun, the distance between Sun and Earth. And the distance between Earth and Saturn is 10 astronomical unit. And the heliosphere
it goes up to 100 astronomical unit, where the light of the sun can reach. And this Voyager 1 satellite has man-made object which has the farthest reached place by anything, by the scientific community. So here the speed of this satellite is around 17 kilometer per second. So this is very huge speed, and it was launched on September 1977. So almost 48 years ago it was launched, and it has not crossed even one light day distance. So one light year distance is the distance in which the light covers in 1 year. So here, this is the comparison. So if this Voyager 1, if suppose it is survived and uh, continue traveling, so it will take 75,000 years to reach on the first nearest star, that is known as Alpha Centauri. But most probably it will not survive for that long. Okay, so this is another comparison. Here I just talked about our solar system on this inside this circle. If here you observing this point, so this point is the solar system in compared to the whole Milky Way galaxy. And whatever the stars at the night we see are the part of this small circle only. Okay, so this is how the Milky Way is huge object in the universe. And Milky Way galaxy contains 250 billion stars. And this is another comparison. Now come to the large scales at the galactic scales. That is here now Milky Way becomes a point-like particle. And here is another comparison. Here there is a Andromeda galaxy, and compared to the Milky Way galaxy, the Andromeda galaxy is known as M87, which is 1 million light years across, and Milky Way is 100,000 light years across. It means light year means if you want to cross the Milky Way from one age to another age with the speed of light, then you have to travel until 100,000 years. And there is another galaxy M87. It is 1 million light years across, and this is the largest known galaxy, which is known as IC 1101. It is 6 million light years across, and the size of this galaxy is 60 times than the Milky Way. And this IC 1101 is the contains around 100 trillion stars. So this is very huge things in the universe. If I talk about the total stars in the universe, then this is the quantity 3 into 10 to power 23 stars and 10 to power 11 galaxies in the observable universe. So this is the overall picture how big is the universe is. If we travel at the speed of light, then it will take 3 seconds, only 3 seconds to reach the moon, and 8.3 minutes to get the sun, and 2000 years to get out from the Milky Way, and the 90 billion years to reach at the age of the observable universe. So this is very huge distance. And this is, I talked about only about the observable universe. So observable universe is that from which, suppose the universe was created around 40 billion years ago. So light has started to travel from that point and now reaching to us. So that is the farthest point we can observe. Otherwise, the beyond that we cannot observe because according to the Einstein special relativity, nothing can be moved faster than the speed of light. So if the light is traveling from the starting point, that is Big Bang, so today it is reaching to us. So this is the known observable universe. But the scientists say this is not the complete universe, but the only the fractional part of the total universe. So total universe is very vast.
Scientists suggest that the universe is at least 250 times larger than the observable universe, or at least 6-7 trillion light years across. So this is a very huge distance. Even we cannot imagine. Now come to the Vedic point of view. So here, this is the complete picture of according to the Srimad Bhagavatam. We know there are 14 planetary systems, and 7 are heavenly planets, and 7 are and 7 are hellish planets. So here, this universe is very huge. Just in next slide, we will see how vast it is. But actually, reaching out of this universe is not possible according to the Vedas, because it is covered by 5 elements, which are 5 are gross elements and 3 are subtle elements. We know earth, water, fire, air, and ether. And there are 3 subtle elements. Those are known as mind, intelligence, and false ego. And every layer is 10 times of the previous one. So this is they don't mention, it is not mentioned in anywhere with the Vedas that how huge it is, but here you can see there is some references in Rig Veda. It is mentioned in the Purush Sukta 10.90 that the whatever the physical universe is, the visible universe is, or the material universe, rather to say, this is the only the 1/4 of the total creation. 3/4 is beyond our perception, and that is known as transcendental VR. So you can imagine how vast it is. And there is another reference of Vishnu Puran where it is mentioned about the 14 planetary systems. In Atharvaved, they have directly mentioned it is infinite wheel. Infinite wheel is Anant Chakra, means Anant Chakra, it is rotating. So it is also mentioned that even demigods cannot measure. देवता लोग भी इसको measure नहीं कर सकते, इतना बड़ा है ये. Now come to the some speed. So here is the motion of Earth. So we know the Earth rotating on its axis. We know that Earth is rotating about its axis. Earth is revolving about the sun, but we have never questioned, or we have never imagined what is the speed. So the speed is, or the rotational speed is 500 meter per second, and the revolving speed around the sun is 30 kilometer per second. So we are sitting wherever we are sitting, every second we are traveling 30 kilometers, but we don't feel it, because with us everything is moving around the sun. Whole atmosphere is moving. So in the space, the speed are also very extreme. Here it is a comparison that a bullet travels around 6,000 kilometer per hour. This is the speed of a bullet. गोली की जो स्पीड होती है बंदूक से निकलेगी. Now we know there is a space station made by NASA, and this space station is traveling around 27,000 kilometer per hour. So this is around approximately 3 times of the speed of the bullet. And we know that there is a scientist from India, from Lucknow. He has just went in this space, and he was traveling in this space station only. Now come to about the galaxy. So galaxy is also moving in the space, and we cannot say what is the speed of the moving in the space, because in the space or in the universe, we cannot say that the galaxies are flying in the space. Rather, we call that this is the receding velocity. So receding velocity is always respect to some other galaxy. So it is different. It could be different from relative to different galaxies. If we talk about the nearest galaxy, that is Andromeda, so speed is around 100 kilometer per second. But you know, the galaxy is one way is the galaxy is receding in the space, and another thing, galaxy is also rotating about its axis. So when galaxy rotates, so sun is also rotates around its center, and the rotational speed of the sun is 230 kilometer per second. So this is also a very huge speed. And here there is another comparison that sun travels around this means एक चक्कर लगाने में इसको कितना टाइम लगता है. So it takes around 200 million years
to complete one revolution of this Milky Way. तो जब से यूनिवर्स बना है बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो इट हैज कंप्लीटेड ओनली 18 साइकिल सो फार. और अगर बात करें कि कब तक रहेगा, तो 22 साइकिल्स मोर विल बी कवर्ड, देन सन विल बी डाई. So only around 40 cycles it will complete in its whole life, starting from the Big Bang. So the Milky Way itself is a very, very huge object in the universe. So now come to the scientific point of view, how to study all these things. So there are three scientific revolutions in the cosmology. One is the given by Galileo in 16th century. We know it's Galileo physics. And another is the Newtonian physics. We have already studied all these in our schooling level. Newton's law of motions and the force law and uh, action and reaction law. So basically, these Galileo and Newton talk about the force, acceleration, motions, and gravity. But Einstein actually changed the concept about the space, time, and gravity. And the theory on which the Big Bang theory is based is given by Einstein's, which is known as general theory of relativity. And it used a very different concept about the space, time, and gravity. So I will not go in deep into the mathematics of that, but I will try to cover the basic things like this. Here, there is a story about the cannonball. Uh, Before Galileo, it was supposed that the heavier object falls faster and light object falls slower. So Galileo did an experiment in 1500s that he climbed on the Leaning Tower of Pisa and put it to objects or balls, you can say. One is light ball and one is huge ball. Means एक छोटी ball, एक बड़ी ball. And he put it down all together. Then he observed the both ball actually touch the ground at the same time. लेकिन होता क्या है कि जब आप कोई दूसरा हल्का ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई भी कागज का टुकड़ा अगर ऊपर से गिराएंगे तो ये देर में पहुंचेगा. So we know, we have studied all this in our schooling, that because of the buoyancy force of the air, resistance force of the air, the light thing actually takes more time to reach to cover the same distance. But the modern scientists actually wanted to prove this idea, because Galileo also proposed that this can happen in the vacuum. So modern scientists try to prove it, and this concept is the free fall. We know in vacuum actually it is possible that even if you have the leaves or you have the feeder, पंख का, किसी का पंख का टुकड़ा ले लो या कुछ भी ले लो, बहुत हल्की कोई चीज ले लो, उसको अगर आप किसी सेम हाइट से गिराओगे तो वो एक साथ ही गिरेगी. ठीक है, लेकिन ऐसा वैक्यूम में पॉसिबल होगा, वहां पॉसिबल नहीं होगा जहाँ पे एयर रेजिस्टेंस है. So modern scientists actually build a laboratory where they can actually created vacuum. Vacuum कैसे create कर सकते हैं? You can actually pump out all the gases from this chamber. So approximately you can create completely vacuum place. So modern scientists actually repeated this experiment, and what they found, and I want to just play a video. You can also watch this video on YouTube, but this is a very interesting video. You can see that you will see that the scientist actually dropped one ball, heavy objects, and one feather. So you will see that they actually touches on the ground at the same time. So here I'm playing this video. You can watch it. It is just 3 or 4 minutes video. This is when they have not created vacuum.
Okay, so this was the actually this experiment was done just 15 years ago, and it took around more than 400 years to prove Galilei was right. And Galileo Galilei वही थे जिनको जो है वहाँ के चर्च ने, उनके कंट्री के चर्च ने उनको जेल में डाल दिया था इस वजह से, क्योंकि he said that the earth actually rotates revolves around the sun. पहले जो कॉन्सेप्ट था जो बाइबल के अकॉर्डिंग वो ये था कि सन इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद अभी रिसेंटली जिन्होंने उनको जेल में डाला था, उनके चर्च वालों ने इसको भी माफी भी मांगी थी कि गैलीलियो वाज राइट. Okay, so now next is we already have know about the Newtons. We have studied inertia, force, acceleration, three laws of motion, and this law F equal to ma. But actually these things Einstein changed completely. Einstein actually told that this law holds true in one frame of reference. This might not be true in another frame of reference. So when we talk about the gravity, so we have to talk about the frame of references. कहने का मतलब ये है कि ये लॉ जो है वो वहाँ पे फेल हो सकता है. न्यूटन के सारे लॉ फेल हो जाते हैं when we have accelerated frames. And another contribution of Einstein, a special theory of relativity which he proposed in 1905 at the age of 26, he proposed that time is relative. Before that there was a concept time is absolute. So what does it mean that time is absolute? For all observer, whether it is moving or standing or static, so for both actually time, the speed of time passes with the same speed. But Einstein told that for moving observer, time slows down, and because of this, there is a paradox which is known as twin paradox. This product that this is a twin. So there are here twin sisters, and on some day one sister travels at some velocity, very high velocity, in some spacecraft, and after suppose 10 years or 20 years it returns on the earth. तो ये क्या देखती है कि इसकी जो सिस्टर है वो बूढ़ी हो गई है. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दिस लॉ. आइंस्टीन ने जो लॉ दिया था, टाइम इज रिलेटिव. So because it is it is moving with some velocity b, so time reduces by this factor. And when Einstein applied this theory on the planets, so he predicted the very correct precision. He could predict the positions. Now, if we talk about the Vedas or Vedic scriptures, so it is also that time is relative across lokas, जिसको हम रियाल भी कहते हैं, अलग अलग लोक जिनको हम बोलते हैं. इसका हमें प्रूफ कहाँ से मिलता है? सो आई हैव इंक्लूडेड दिस स्टोरी विच वॉज नोन एज ब्रह्म विमोहन लीला. ब्रह्म विमोहन लीला मतलब ब्रह्म विमोहन का यहाँ पे मतलब है कि ब्रह्मा जी विमोहित हो गए, यानी कि भ्रम हो गया उनको. कैसे भ्रम हो गया? ये एक श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के पास टाइम में ये स्टोरी आती है. जब वो छोटे थे तो ब्रह्मा जी ने उनके जो साथी थे, फ्रेंड्स थे, उनको चुरा लिया था, क्योंकि उनको ये यकीन नहीं था. इसकी काफी लंबी स्टोरी है, तो आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल कि उनको कैसे भ्रम हो गया. तो देखते थे कि ये तो बड़ा ऑर्डिनरी बच्चे की तरह काम करता है, तो ये भगवान नहीं हो सकता. तो उन्होंने ये ग्वाल बाल को सबको चुरा लिया. लेकिन जस्ट अगले दिन वो वापस आके देखते हैं कि वो सारे ग्वाल बाल जो है उनके साथ खेल रहे हैं. तो यानी जिन्होंने उनको चुराया था वो अपने लोक में उनको वहां सुला दिया था, कुछ योग निद्रा वगैरह से उसको सुला दिया था. फिर आके देखते हैं कि यहाँ तो सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है. बट उस टाइम पे हुआ क्या होता है, ओनली 1 day पास्ड इन दी ब्रह्मलोक, बट ऑन अर्थ एक्चुअली 100 of years पास्ट. बहुत सारे कई सारे साल पास हो गए. तो वो जो है ब्रह्मा जी चकित रह गए कि अरे ये गलती हो गई इसका मतलब मुझसे. तो आके वो माफी भी मांगते हैं. और यहाँ पे एक और चीज है कि उस टाइम भगवान ने
ब्रह्मा जी को ये भी ज्ञान दिया कि भाई तुम ही अकेले ब्रह्मा नहीं हो, और भी बहुत सारे ब्रह्मा हैं। यानी मीन्स हियर देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ द मल्टी यूनिवर्स, कि बहुत सारे ब्रह्मा हैं और हर एक यूनिवर्स का एक एक ब्रह्मा होता है। तो उन्होंने सारे यूनिवर्स के ब्रह्मा को यहाँ पे बुला लिया था। तो इसी को बोलते हैं ब्रह्म विमोहन लीला। एंड इन ब्रह्म लोक वन डे ऑफ ब्रह्मा इज इक्वलेंट टू 4.32 बिलियन ईयर्स, जिसको हम कल्प के नाम से भी जानते हैं। और देयर इज ए श्लोक इन भगवत गीता ऑल्सो, पॉइंट 17, सहस्त्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदु। यानी कि ब्रह्मा जी के जब 1000 साल बीत जाते हैं, तो इस तरह के वहां पर डिस्कशन आया है जिसमें कि युग और महायुग का डिस्कशन चल रहा है। सो हियर द कंक्लूजन इज दैट टाइम इज रिलेटिव। साइंटिस्ट भी ने इसको एक्सेप्ट किया कि टाइम इज रिलेटिव, एंड इट इज ऑलरेडी मेंशन इन आवर वेदा दैट द टाइम इज रिलेटिव। द रिलेटिव टाइम मींस टाइम पासेस एट डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट रियल्म्स। अलग अलग जगह पर टाइम अलग अलग स्पीड से पास होता है। सो एक्चुअली आइंस्टाइन पिक दिस कॉन्सेप्ट and made this theory of special relativity, and we know he also made this relation E equal to mc square, and this relation actually derived by the special theory of relativity, and this is used in to make the nuclear bomb, and America already we know has used it in Second World War on Japan, Hiroshima and Nagasaki. So recently actually अब तक कॉन्सेप्ट ये था कि केवल मास को एनर्जी में बदला जा सकता है, एनर्जी को मास में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। बट नाउ ऑन क्वांटम लेवल साइंटिस्ट आर डूइंग सम रिसर्च एंड दे हैव इन लेबोरेटरी दे हैव क्रिएटेड मास फ्रॉम एनर्जी। तो दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। इससे जो है यूनिवर्स की जो गुत्थी है वो पूरी तरह से सुलझ गई है कि जैसे कि होता क्या है व्हेन वी टॉक अबाउट द बिग बैंग थ्योरी। सो बिग बैंग थ्योरी इज एप्लीकेबल आफ्टर ए सर्टेन टाइम। जो प्लैंक टाइम है, प्लैंक टाइम एक्चुअली बिग बैंग थ्योरी डज नॉट वर्क, फिजिकल लॉ काम नहीं करते वहां पर। सो बिफोर दैट इट इज सपोज दैट देयर वाज ओनली एनर्जी, देयर वाज नो मास। तो मास एनर्जी वाज कन्वर्टेड इनटू मास। तो ये एक तरह से यहाँ पे एक एविडेंस मिला है हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द बिग बैंग सिमिलैरिटी। Now, still the special theory of relativity was very successful, but there was a problem with this theory. क्या problem थी इसमें? I am speaking in Hindi also so that I can let you explain very well. So here this is there is a concept of precision of perihelion. तो ये concept ये होती है कि whenever there is a planet is very closest to the sun, so that point is known as perihelion point. So here there is a perihelion point. तो जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग या न्यूटोनियन ग्रेविटी के अकॉर्डिंग किसी प्लेनेट की हम प्रिडिक्शन करते हैं कि इतने साल के बाद इसकी पोजीशन ये होनी चाहिए, तो मरकरी प्लेनेट इसको फॉलो नहीं कर पा रहा था, ना ही न्यूटोनियन थ्योरी को फॉलो कर रहा था, ना ही स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को फॉलो कर रहा था। क्या प्रॉब्लम थी? ये इन 100 years means after 100 years there is a difference of 43 seconds of arc. This is a very tiny difference, micro difference. 43 seconds is very small. आप एंगल में अगर देखो जो आपकी वॉच है उसमें 43 आर्क सेकंड इज वेरी स्मॉल एंगल। 100 साल में इतना आगे बढ़ जाता है, मतलब when the Mercury is revolving around the sun, so after 100 years there is a difference of 43 seconds. मतलब अपनी जो ओल्ड जो क्लास है उसका जो ऑर्बिट है उसको फॉलो नहीं करता, थोड़ा सा आगे निकल जाता है। तो ये किसी भी थ्योरी ने इसकी इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं किया। देन आइंस्टीन वर्क फॉर 12 years। आइंस्टीन ने फिर 12 साल काम किया टू जनरलाइज दिस थ्योरी ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एंड ही प्रपोज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टू रिजॉल्व दिस मिस्ट्री। सो general theory of relativity is the most promising theory today, which is applied on the universe and is the basis of the Big Bang theory. ये theory क्या है? I will not go into much details of the mathematical part, but just you can in this animation you can see आइंस्टीन जैसे कि न्यूटन ने जो कॉन्सेप्ट खत्म की थी वो बोली थी कि when there is two massive object in the universe, so they have force. जहां भी दो ऑब्जेक्ट होंगे उनके बीच में फोर्स होगा, जैसे कि सन है उसके चार ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट, सो दे बिकॉज ऑफ सम फोर्स बिटवीन दैट। आइंस्टीन ने इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह चेंज कर दिया।
आइंस्टीन ने बोला कि दे एक्चुअली दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट, दिस इज नॉट रॉन्ग एक्चुअली ऑन सम scales or at certain special circumstances Newton's law holds, but extreme those points Newton's law fails. तो उसमें से एक ये लॉ ये भी है कि मरकरी वाई मरकरी इज नॉट फॉलोइंग। तो मरकरी के साथ एक खासियत है, मरकरी जो प्लेनेट है वो अर्थ के सबसे पास का प्लेनेट है। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? near the sun the gravity is very high, gravity, that's why actually Mercury does not follow the Newton's law or the theory of special relativity law. So Einstein actually made a new concept. The concept is mentioned in layman, it is over here. The matter tells to space-time how to curve and space-time tells to matter how to move. Now what does it mean? The means is wherever there is a massive object, so geometry around it actually curved. Curved means wherever there is a massive object, so and when there is a particle or some small object is passing nearby that, so it will follow the rule made by that massive object. इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जहां भी कोई मैसिव ऑब्जेक्ट होगा तो वहां की ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी और उसको किस तरह से पास होना है, बाहर के मैटर को किस तरह से पास होना है, ये वो ज्योमेट्री डिसाइड करेगी। एंड वाइस वर्सा, कि कहीं की कोई ज्योमेट्री है तो उसमें मैटर कैसे बिहेव करेगा, यानी कि मैटर तो ज्योमेट्री को कर्व कर देता है और ज्योमेट्री मैटर को बताती है कि इसको कैसे बिहेव करना है। तो आइंस्टीन ये वेरी दैट्स व्हाई एक्चुअली आइंस्टीन इज नोन एज दैट ही हैज द मोस्ट हाई आईक्यू लेवल, क्योंकि ऐसी चीजें ये परसीव करना इट इज नॉट वेरी नॉर्मल टास्क कि भाई ऐसा भी हो सकता है। So because of this understanding, he made these equations. So this is very purely mathematical equations and very complex equation. यहाँ पे देखने में ये एक इक्वेशन लग रही है, एक्चुअली देयर आर 16 इक्वेशंस इन्वॉल्व इन दिस। यहाँ पे कि जी वही है जो न्यूटन ने यूज किया था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आइंस्टीन ने क्या किया, दो पार्ट को जोड़ दिया, वन इज द ज्योमेट्री एंड वन इज द मैटर। तो ज्योमेट्री को मैटर के साथ रिलेट कर दिया, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। इसी इक्वेशंस को जब यूनिवर्स पे अप्लाई करते हैं तो एक इक्वेशन मिलती है जिससे कि बिग बैंग थ्योरी का जन्म होता है। नाउ व्हाट इज दैट? कम टू दिस नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, दिस इज दैट इक्वेशन। जब इस यूनिवर्स को इस पर अप्लाई करते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिलती है। ये इक्वेशन क्या है? लेफ्ट साइड में जो है ए डॉट अपॉन ए इज द डिस्टेंस एंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस इज द वेलोसिटी। सो लेफ्ट साइड में क्या है? वेलोसिटी है। एंड राइट साइड में क्या है? 4πg/3 इज ए वेरी purely constant quantity, only rho is there and rho is the energy density of the universe. Energy density means matter जितना भी universe में है उसकी density. So velocity is proportional to density. It means we know any matter has positive density. Positive density means velocity is positive. Now what does it mean positive velocity? Positive velocity का मतलब है कि velocity is increasing. तो यूनिवर्स पे जब इसको लगाया गया, आइंस्टीन ने जब इसको लगाया तो उसने आंसर, उसका कंक्लूजन था यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। बट उस टाइम की प्रॉब्लम क्या थी? उस टाइम पर एस्ट्रोनॉमिकल जो है बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हो पाई थी। उस टाइम जो पूरा यूनिवर्स जो अभी हमने पूरा डिस्कस किया उसके बारे में पता ही नहीं था कि यूनिवर्स इतना बड़ा है। द मिल्की वे गैलेक्सी इज इटसेल्फ सपोज्ड टू बी द होल यूनिवर्स। बस ये पता था कि जो मिल्की वे गैलेक्सी वही पूरा यूनिवर्स है। और मिल्की वे गैलेक्सी के जो स्टार्स हैं वो कम रिस्पेक्ट टू सन वो सब फिक्स हैं, वो कहीं मूव नहीं कर रहे। तो पहले का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि यूनिवर्स स्टैटिक होना चाहिए। तो आइंस्टीन ने क्या किया कि उसने सोचा कि मेरे मॉडल में थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको ठीक करते हैं। तो उसने ठीक करने के लिए क्या किया, एक कांस्टेंट ऐड कर दिया अपनी इक्वेशन में लेफ्ट साइड में, इसको स्टैटिक बनाने के लिए। क्योंकि होगा क्या, ये जो डेंसिटी है जिसको इसको पॉजिटिव करके वेलोसिटी बना रही है वो जीरो हो जाएगी। कैसे जीरो हो जाएगी? इस तरह से, जो कांस्टेंट लेफ्ट में ऐड किया वो राइट में चला जाएगा और रो और ये जो कांस्टेंट है ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। जीरो हो जाएंगे मतलब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो यूनिवर्स स्टैटिक हो जाएगा। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। बट इसके साथ साथ क्या हो रहा था, एस्ट्रोनॉमी में भी बहुत सारे रिसर्च हो रहे थे, जिसमें कि सबसे बड़े एस्ट्रोनॉमी के उस टाइम के रिसर्चर थे वो थे एडविन हबल।
एडविन हबल ने जो उस टाइम क्या कर लिया, एक बहुत पावरफुल टेलीस्कोप डेवलप कर लिया था 1929 में, और इन्होंने बहुत सारी गैलेक्सीज को ऑब्जर्व किया। इन्होंने बताया कि अपने गैलेक्सी के अलावा भी दूसरी गैलेक्सी है, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, यूनिवर्स तो एज। तो इन्होंने क्या पाया, इसमें पाया रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट मतलब जो लाइट है, जैसे कि हम पाते हैं डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट से हम बता पाते हैं कि कोई चीज हमारे पास आ रही है या दूर जा रही है। तो ऐसे ही हम डॉपलर शिफ्ट से बता पाते हैं कि कोई लाइट हमारे पास आ रही है या दूर जा रही है। तो ये जो गैलेक्सी से आने वाली लाइट थी, ये दिखा रही थी रेड शिफ्ट। तो रेड शिफ्ट का मतलब था कि गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है। तो उन्होंने एक लॉ बनाया, हब्बल्स लॉ, कि किस स्पीड से गैलेक्सी मूव करती है। और जैसे ये रिसर्च डिस्कवरी हुई, तो आइंस्टीन ने जो कांस्टेंट ऐड किया था अपने यूनिवर्स को स्टैटिक बनाने के लिए, उसको माना कि दिस वाज द बिगेस्ट ब्लेंडर ऑफ माय लाइफ। सबसे बड़ी मिस्टेक थी मेरी जिंदगी की। अगर ये कांस्टेंट में ऐड ना करता, तो मेरा तो मॉडल ओरिजिनली बता ही रहा था कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। दिस इज द बेसिस ऑफ द बिग बैंग, कि अगर यूनिवर्स आज के टाइम पे एक्सपेंड कर रहा है, इसका मतलब पहले क्या रहा होगा, पास रहा होगा। तो हियर देयर इज एनिमेशन दैट, ये सपोज एक बैलून से बताया गया है कि सपोज दिस बैलून इज यूनिवर्स, इट इज एक्सपेंडिंग। तो अगर इसको टाइम को पीछे ले जाए, तो इसका मतलब छोटा रहा होगा और छोटा रहा होगा और छोटा रहा होगा। मीन्स ये एक बहुत छोटी सी जगह रहा होगा जितनी ज्यादा आप पास्ट में ले जाएंगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द बिग बैंग, यानी ये सिंगल इक्वेशन ही मैथमेटिक्स की बिग बैंग की बेसिस है। इसमें इस कॉन्सेप्ट को आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं। नाउ लेट अस गो बैक इनटू टाइम। तो अगर टाइम बैक इनटू टाइम हम जाएंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी दिस वाज द पिक्चर। अब साइंटिस्ट को जो पहली, जो सबसे दूर की इमेज मिली है, सबसे दूर से जो लाइट आ रही है, द एज ऑफ द यूनिवर्स इज 13.7 बिलियन ईयर्स। तो एज इसलिए बोलते हैं इस यूनिवर्स को, क्योंकि हमारे पास जो लाइट आई है वो 14.7 बिलियन ईयर्स पहले चली थी, यानी उससे पहले की हमें लाइट नहीं मिली। अब उससे पहले की लाइट नहीं मिली, इट मीन्स लाइट प्रोड्यूस ही उसी टाइम हुई थी। तो यही है कॉन्सेप्ट बिग बैंग की, कि वहां से बिग बैंग शुरू हुआ था। सो ये 300,000 ईयर्स पहले उस टाइम की पिक्चर है, जब लाइट पहली बार बनी थी। लाइट का मतलब फोटॉन्स, फोटॉन्स होते हैं ना लाइट। सो ये यहाँ तक हमें पहुंचे, कितने साल में पहुंचे हमारे पास, 13.7 बिलियन ईयर्स में पहुंचे हैं। अगर हम और बैक में जाएं इसके, तो हमें ये मिल जाता है। और थोड़ा बैक में जाएंगे तो बिल्कुल पॉइंट पे पहुंच जाएगा, और जैसे ही पॉइंट पे पहुंच जाएगा, वही है बिग बैंग का पॉइंट। और वहीं से बोलते हैं कि सारा यूनिवर्स क्रिएट हो गया। तो ये जस्ट एनिमेशन है, ऐसा नहीं है कि ऐसा एक धमाका हो गया और यूनिवर्स क्रिएट हो गया। ये पूरी पिक्चर जो बिग बैंग थ्योरी की है, वो ये है कि ये हमारा आज का प्रेजेंट डे यूनिवर्स है, जिसमें गैलेक्सी हैं, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं। जब यूनिवर्स की एज 1 बिलियन ईयर्स थी, तो उसमें क्या क्या चेंजेस फॉर्मेशन हुए थे। तो जैसे मैंने बताया कि जो लाइट हमारे पास आई है, वो 300,000 ईयर्स की है। तो वो तब की है जब हाइड्रोजन और हीलियम ने मिलकर के स्टार्स का फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया था, यानी लाइट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गई थी। उससे पहले अगर जाए 3 मिनट यूनिवर्स, यानी बिग बैंग के जो सिंगुलरिटी है उस पॉइंट से हम 3 मिनट तक जाएं, तो हमें मिलता है जब ये हाइड्रोजन और हीलियम के जो न्यूक्लियर है वो बने थे, फॉर्म हुआ था। और न्यूक्लियर कैसे फॉर्म होते हैं, वी नो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मिलने से फॉर्म होते हैं। तो उससे भी पहले जाए तो 10 टू द पावर, तो 1 सेकंड की बात चलती है कि 1 सेकंड में क्या क्या हुआ था। तो ऐसे ही हम पहुंच जाते हैं 10 टू द पावर -43 सेकंड पर। तो यहाँ तक फिजिक्स काम करती है, जिसको हम प्लैंक टाइम बोलते हैं। उससे पहले फिजिक्स खत्म हो जाती है, काम ही नहीं करती, फिजिक्स के सारे लॉ फेल हो जाते हैं। क्योंकि जो मैटर की स्टेट है वो प्लाज्मा बन जाती है। प्लाज्मा से भी मतलब उस टाइम कुछ भी फॉर्म नहीं हुआ था, ना इलेक्ट्रॉन बना था, ना प्रोटॉन बना था, इवन क्वार्क्स भी नहीं बने थे। न्यू कॉन्सेप्ट है क्वार्क, बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं जिनसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके बनते हैं। तो ये दिस इज द ओवरऑल पिक्चर ऑफ द बिग बैंग थ्योरी। एंड इफ वी टॉक अबाउट, इफ वी कंपेयर विद दी आवर वेदास, तो देयर इज ए कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। ऋग्वेद में यहाँ पे एक मैंने लिया है रेफरेंस। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ सूक्तम। हिरण्यगर्भ का मतलब होता है देयर इज ए स्मॉल सीड और गोल्डन बॉम्ब। ये एम्प्टीनेस में प्रोड्यूस हो गया। कहाँ से प्रोड्यूस हो गया, इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में जानकारी है। बट दिस इज द एक्चुअली महत तत्व से, जिसको बोलते हैं महत तत्व से ये क्रिएट हो गया। तो सेम कॉन्सेप्ट है, यानी यही एक पॉइंट से जो है यूनिवर्स क्रिएट हुआ। so there is a lot of similarity in Big Bang theory and this. So here in this picture it is shown that uh, it is I have taken from Srimad Bhagavatam 2.5
5, 6 यानी सेकंड जो दूसरा जो स्कंद है भागवतम का, उसके 5th और 6th चैप्टर में पूरा डिस्क्रिप्शन है कैसे यूनिवर्स क्रिएट होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि महाविष्णु होते हैं जो कि हमारे यूनिवर्स से बाहर के एक कारण ओशियन में होते हैं, और वहां से जो है कारण वो जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसके साथ यूनिवर्स उनके पोर्स में से, जो हमारे रोम छिद्र होते हैं बॉडी के, ऐसी भगवान के जो रोम छिद्र है उसमें से वो बाहर निकलते हैं, और जब वो सांस अंदर लेते हैं तो वो सारे यूनिवर्स उनके अंदर चले जाते हैं। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आती है कि यहाँ भी एक पॉइंट से जो है यूनिवर्स क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे केवल एक यूनिवर्स क्रिएट नहीं हो रहा, इनफाइनाइट यूनिवर्स क्रिएट हो रहे हैं, इनन्यूमरेबल यूनिवर्स क्रिएट हो रहे हैं। देयर इज अनदर रेफरेंस फ्रॉम ब्रह्म संहिता। यहाँ पे भी एक श्लोक है, या कारण विजय भक्ति संयोगा निद्रा अमनंतम जगदंड सरोम कूपा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो वही सेम कॉन्सेप्ट है कि जो रोम कूप है बॉडी के, वहां से जो है यूनिवर्स क्रिएट हुए हैं। और यहाँ भगवत गीता का भी एक श्लोक है, यहाँ पे अहम सर्वस्व प्रभवो मता सर्व प्रवर्तते इति बद्वा भजन्ते माम भाववदा समन्विता। पहली वाली लाइन का मतलब है आई एम द ओरिजिन ऑफ द ऑल क्रिएशन, यानी सॉरी भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता सुनाते टाइम अर्जुन को बता रहे हैं कि सब कुछ, सारी क्रिएशन जो है मेरे से हुई है, एंड दिस इज द फेट ऑफ द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो साइंस कहती है यूनिवर्स की जो एंडिंग है वो 3 तरह से हो सकती है। एक तो ये बिग क्रंच में कन्वर्ट हो जाएगा, बिग क्रंच मीन्स अगेन जैसे ही क्रिएट हुआ था ना एक पॉइंट से, फिर से उसी पॉइंट में ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट कंटिन्यू फॉर एवर, कि हमेशा कंटिन्यू होता रहेगा, जैसे एक्सपेंड हो रहा है हमेशा इनफाइनाइट टाइम के लिए होगा। और एक है बिग चिल, कि जो ये एक्सपेंड हो रहा है ये एक्सपेंशन और तेजी से बढ़ेगा, एंड जितना भी मैटर है वो सारा यूनिवर्स में बिखर जाएगा। बिखर जाएगा मीन्स जैसे कि हमारी अर्थ है, तो अर्थ भी अपनी ग्रेविटी को होल्ड नहीं करेगी। अर्थ इज इटसेल्फ एक्चुअली डिस्ट्रॉय इन द पार्टिकल्स। इतनी वीक हो जाएगी ग्रेविटी की, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो ही अपने आपके फोर्सेस को नहीं बांध के रख पाएंगे, वो सारे बिखर जाएंगे। तो दीज आर 3 सिनेरियोज ऑफ द फेट ऑफ द यूनिवर्स। बिग क्रंच, जिसमें कि जो वैदिक स्क्रिप्चर से मैच करता है वो बिग क्रंच करता है, क्योंकि पता है कि अभी जैसे हमने लास्ट पिक्चर में देखा कि यूनिवर्स पहले तो क्रिएट होता है, उसके बाद वापस उसमें चला जाता है, सृष्टि और प्रलय वाला जो कॉन्सेप्ट है। तो ये जो फर्स्ट पिक्चर है ये अब इसके पीछे जो साइंटिफिक कम्युनिटी बात करते हैं वो करते हैं बिकॉज ये डेंसिटी डिपेंड करेगी कि मैटर के अंदर जो यूनिवर्स के अंदर जो मैटर है वो डिसाइड करेगा कि इसका एंड कैसे होगा। अगर वो डेंसिटी ज्यादा हुई तो बिग क्रंच में होगा, कम हुई तो ऐसे होगा, और कांस्टेंट रही तो कांस्टेंट ही चलता रहेगा। नाउ साइक्लिक यूनिवर्स की साइंटिस्ट लोग बात करते हैं। साइक्लिक यूनिवर्स की अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं है, पर कुछ थ्योरी इसको प्रपोज करती है कि यूनिवर्स जो है एवरी 500 बिलियन ईयर्स में अपने आप को रोटेट करता है। रोटेट करता है मतलब साइकिल, क्रिएट होता है, डिस्ट्रॉय होता है। द सेम कॉन्सेप्ट इज मेंशन इन विष्णु पुराण आल्सो, एज आई मेंशन सृष्टि स्थिति एंड प्रलय। यानी यूनिवर्स पहले क्रिएट होता है, कुछ टाइम तक रहता है, फिर प्रलय के टाइम पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी साइक्लिक नेचर है यूनिवर्स का। यही सेम बात श्रीमद् भागवतम के 2nd कैंटो में 10th चैप्टर में मेंशन है, वर्ष नंबर श्लोक संख्या 1 से लेकर 3 में। यहाँ पे बताया गया सर्ग विसर्ग चा स्थान, यानी सर्ग का मतलब सृष्टि होती है, विसर्ग का मतलब प्रलय होती है, और स्थान का मतलब कुछ टाइम तक वो रहता भी है। और इसी को 10वें स्कंद में भी जो है कुछ श्लोकों में सेम कॉन्सेप्ट आई है। कुछ यहाँ पे कुछ अदर वैदिक रेफरेंसेस भी है, तो यू कैन गो थ्रू अबाउट दैट। बिकॉज ऑफ लैकिंग टाइम आई एम नॉट गोइंग अगेन इनटू द डिटेल। सो विष्णु पुराण बुक 1 चैप्टर 2 में भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है सेम क्रिएशन की। महाभारत के शांति पर्व में भी इसमें बात कही गई है। पद्म पुराण में गर्भोदक ओशियन की बात हुई है कि किस तरह से यूनिवर्स मैनिफेस्ट होते हैं वाइल महाविष्णु एक्सिलेट। अब नाउ कम टू द अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर। सो जैसे मैंने बताया कि एक इक्वेशन वहां से मिलती है जो आइंस्टीन की थ्योरी है, उसी से एक और इक्वेशन मिलती है, सेकेंड इक्वेशन वो ये है। यहाँ पे जो है डबल डॉट है, डबल डॉट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ द डिस्टेंस, डबल डेरिवेटिव। अब डबल डेरिवेटिव का होता है कि डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी का भी डेरिवेटिव कर देते हैं तो एक्सेलरेशन आ जाता है। तो अब ये बता रहे हैं कि यूनिवर्स एक्सपेंड तो कर रहा है, लेकिन भाई कितनी स्पीड से कर रहा है। तो यहाँ पे
आप देख रहे हैं कि राइट साइड में अगेन देयर इज ए कांस्टेंट एंड रो प्लस 3p, सो रो अगेन सेम डेंसिटी एंड p इज प्रेशर। तो प्रेशर जो है, बोथ आर, प्रेशर मींस द ग्रेविटेशनल पुल, देयर इज ए मास इन द यूनिवर्स और वहां पे ग्रेविटी है, दोनों अट्रैक्टिव है। तो p इज ऑल्सो पॉजिटिव, रो इज ऑल्सो पॉजिटिव, यानी कि राइट साइड की क्वांटिटी हो गई नेगेटिव। और राइट साइड की क्वांटिटी नेगेटिव होने का मतलब है कि एक्सेलरेशन नहीं की जगह डिसेलरेशन हो रहा है, यानी कि जो जैसे कि कार में ब्रेक लगाते हैं वैसा काम होना चाहिए। तो यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है बट विद डिसेलरेटेड रेट। तो ये आइडिया 80 ईयर्स तक सरवाइव करता रहा। अभी क्या हुआ 1998 में, देयर आर 3 साइंटिस्ट, सॉल पर्लमुटर एंड ब्रायन समिट एंड एडम रीज। इन्होंने क्या देखा कि जो गैलेक्सी के जब जब कोई स्टार है, जैसे कोई स्टार है तो वहां पे सुपरनोवा होता है। तो सुपरनोवा जो है वो पास के में, मतलब इतना रेयर है, बहुत रेयर 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 इवेंट है। सो सुपरनोवा कैन बी इन सम अदर गैलेक्सी दैट इज वेरी फार। तो वहां पे अगर सुपरनोवा होगा तो उन्होंने उसको डिटेक्ट किया और क्या पाया कि यूनिवर्स इज नॉट एक्सपेंडिंग विद डिसेलरेटेड रेट बट एक्सेलरेटेड रेट, यानी एक्सपेंड तो कर रहा है लेकिन डे बाई डे इसके एक्सपेंशन की स्पीड भी बढ़ रही है। दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेटिंग। तो अब प्रॉब्लम ये है कि द मैटर कंटेंट इन द यूनिवर्स हैव अट्रैक्टिव क्वालिटी, अट्रैक्टिव फीचर। भाई ग्रेविटी मास तो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो फिर ये रिपल्स कौन कर रहा है? तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आ जाती है डार्क एनर्जी की। तो डार्क एनर्जी के बारे में बता, डार्क नाम इसलिए दे दिया क्योंकि पता ही नहीं वो कौन सी एनर्जी है। देयर इज सम एक्स्ट्रा एनर्जी, साइंटिस्ट डोंट नो व्हाट इज दैट, तो उसको नाम दे दिया डार्क, पता नहीं है उसके बारे में। बट व्हाट इज द फीचर ऑफ दैट एनर्जी? इट इज अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। इसके अपोजिट काम कर सकती है, करती है मीन्स ये ग्रेविटी तो खींचती है मैटर को आपस में और डार्क एनर्जी दूर भगाती है, रिपल्स करती है। सो ये 20th सेंचुरी की मोस्ट मिस्टीरियस डिस्कवरी रही, क्योंकि अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। मीन्स अभी तक इसका क्लू नहीं मिल पाया व्हाट इज डार्क एनर्जी। तो डार्क एनर्जी के लिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर है जो कि आइंस्टीन का ही कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है। दिस इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि जो कांस्टेंट आइंस्टीन ने ऐड किया था, जिसको बोला था ये मेरी गलती हो गई बहुत बड़ी लाइफ की, उसी गलती को अगर आज हम इस राइट, उसकी जगह लेफ्ट की बजाय राइट साइड में अगर ऐड कर देते हैं तो ये डार्क एनर्जी को एक्सप्लेन कर देता है। तो हम देख सकते हैं ये आइंस्टीन के साथ एक तरह से हाउ इट वाज, आइंस्टीन वाज फॉर्चुनेट, तो उसकी जो गलती है ना वो भी आज की एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। क्या होगा, राइट साइड में हमें पॉजिटिव क्वांटिटी चाहिए, अगर वही कांस्टेंट उसमें ऐड कर दिया जाए तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी एक्सेलरेशन हो जाएगा, यूनिवर्स एक्सेलरेट करने लगेगा। बट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस कांस्टेंट? पहले कांस्टेंट को ऐड किया था स्टैटिक बनाने के लिए यूनिवर्स को, अब इसी कांस्टेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है? टू मेक द यूनिवर्स एक्सेलरेटिंग। और ये कांस्टेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डार्क एनर्जी को। यानी जो ऐड किया था स्टैटिक बनाने के लिए, नाउ इट इज रिप्रेजेंट टू रिप्रेजेंट द डार्क एनर्जी। इसको हम वैक्यूम एनर्जी भी बोलते हैं। साइंटिस्ट ने अभी तक बस यही प्रपोज किया है कि जो एम्प्टी है, एम्प्टीनेस है, उसके पास भी कुछ फीचर्स होते हैं, और वो फीचर ही है कि वो रिपल्स करती है, स्पेस टाइम उस एनर्जी की वजह से रिपल्स करता है। तो यहाँ पे एक कार्टून ही बनाया गया है, द एक्सेलरेटिंग यूनिवर्स, यानी कि जो यहाँ पे आइंस्टीन को दिखाया गया कि ही इज सरप्राइजिंग। क्यों? क्योंकि इसकी जो, उसने तो जस्ट ये बोला था कि स्टैटिक है, बाद में पता चला एक्सपेंड कर रहा है, अब पता चला एक्सपेंड तो कर रहा है, इसका रेट और डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस इट वाज पब्लिश्ड इन 1998, 18 दिसंबर, इन सम मैगजीन। तो अब नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कि टोटल बजट कितना है यूनिवर्स का, तो अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू 68% डार्क एनर्जी एंड 27% इज डार्क मैटर। तो ये अभी तक जितनी भी हमने बात की, स्टार, प्लेनेट, 10 to the power, ये इतनी गैलेक्सी, ये वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड, दैट इज ओनली 5% ऑफ द टोटल यूनिवर्स। तो पहली बात तो टोटल यूनिवर्स भी हमारा छोटा है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, उसके अंदर भी जो मैटर कंटेंट की बात कर रहे हैं दैट इज ओनली 5%। वी डोंट नो व्हाट इज द अदर 70% और अदर 90% इंक्लूडिंग डार्क मैटर। डार्क मैटर के बारे में भी नहीं पता। इतना पता ही डार्क मैटर हैज द सेम नेचर एज द नॉर्मल मैटर, बट इट इज नॉट विजिबल, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट डार्क। इसको भी डार्क नाम दे दिया। तो नाउ साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, इसको वही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ है ये मैटर, इधर है, कौन से पार्टिकल में छुपा हुआ है।
तो एटम्स के बारे में भी कॉन्सेप्ट जो है काफी चेंज हुई है हमारी लास्ट, यहाँ पे पूरा दिया गया है कि मोस्टली 2500 years में. So first we have the concept about the atoms were given by Dalton, then Thomson, Rutherford, Bohr or Schrodinger. They have very different concept about the atom, but इसके बेसिस पे जो साइंटिस्ट के पास आज के टाइम में जो पिक्चर है पूरे कि पूरा यूनिवर्स, पूरा जो भी मैटर विजिबल है हमारे सामने, वो सारा इन पार्टिकल से मिलके बना हुआ है. क्वार्क्स हैं, लेप्टॉन्स हैं, गेज बोसॉन्स हैं, स्केलर बोसॉन्स हैं. स्केलर बोसॉन्स एक ही है, दैट इज हिग्स. इसी को गॉड पार्टिकल कहते हैं, जो कि 2012 में लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में सर्च किया था. 2012 में आपको याद होगा कि एक मशीन चलाई गई थी, बोला भाई पृथ्वी खतरे में है, अर्थ खत्म हो जाएगी, वहां पे मशीन चलाई जा रही. तो दिस वाज द डिस्कवरी. उस टाइम गॉड पार्टिकल को खोजा गया था, लेकिन अभी भी ये मॉडल कंप्लीट नहीं है. व्हाई इट इज नॉट कंप्लीट? इसमें जो 50% पार्ट है वो मैटर का है एंड अदर 50% पार्ट ऑफ एंटी मैटर. तो ये सारा जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो अप और डाउन क्वार्क से मिलके बनता है. बाकी देयर इज सम स्ट्रेंज मैटर. बाकी हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स और एट ये आपका न्यूक्लियर बना लेते हैं मिलकर के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ. यहीं से डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम और सारे जितने भी केमिस्ट्री की आपने टेबल देखी होगी, जितने भी अभी तक नोन एलिमेंट्स हैं वो सब मिलके इन्हीं पार्टिकल से मिलके बने हैं. बट इसमें मिसिंग है. एक तो ये नहीं पता कि ग्रेविटी क्यों होती है, तो ग्रेविटॉन्स की एक कॉन्सेप्ट की गई है. ये नहीं पता कि इसमें डार्क एनर्जी का क्या फैक्टर है, वो यहाँ पे गायब है. डार्क मैटर का क्या कॉन्सेप्ट है, वो भी यहाँ पे गायब है. तो द आंसर इज अगेन इन आवर वेदास. यहाँ पे जो आंसर मिलेगा डार्क एनर्जी डार्क मैटर का, क्योंकि साइंटिस्ट क्यों नहीं डिस्कवर कर पा रहे डार्क एनर्जी डार्क मैटर को? बिकॉज दिस इज सटल एलिमेंट्स. इन वेदास इट इज टॉक अबाउट सम सटल एलिमेंट्स, जैसे कि प्राण और महाप्राण की बात होती है, महत तत्व की बात होती है. महत तत्व इज द इंग्रेडिएंट जिससे कि पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ. सबसे पहले वो हिरण्यगर्भ में एक सीड होता है, उस सीड से पूरा यूनिवर्स क्रिएट हो जाता है. उससे पहले साइंटिस्ट नहीं जानते, वहां पे फिजिक्स फेल हो गई. बट महत तत्व मे बी दैट इंग्रेडिएंट्स. एंड शक्ति की बात होती है, जैसे आदि शक्ति की बात होती है, इसको प्राइमोर्डियल एनर्जी से बात चलते हैं. साइंटिस्ट भी कहते हैं कि बिफोर द बिग बैंग देयर वाज सम एनर्जी, उसको प्राइमोर्डियल एनर्जी बोला जाता है. और एक कॉन्सेप्ट रित की है, रिता. तो यहाँ पे डार्क एनर्जी की कॉन्सेप्ट है. और जैसे कि महत्व है तो हो सकता है फील्ड हो, जैसे कि वैक्यूम फील्ड की बात कर दी कि एम्प्टी यूनिवर्स में भी कुछ एनर्जी होती है जो कि डार्क एनर्जी है. नाउ दीज आर सटल एलिमेंट्स, वी कैन नॉट परसीव इट. कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स इनको जो है डिटेक्ट नहीं कर सकता, कोई भी हमारी सेंसेस से भी ये बियॉन्ड है, बिकॉज सटल एलिमेंट्स है. So that's why it remains still the mystery. Here is another concept. In the Vedas, it is also mentioned about Anu, Parmanu, Tomanguna, Abhyakt. Abhyakt means unmanifest. तो हमें केवल वो चीजें दिखाई देती हैं जो मैनिफेस्ट हो चुकी है. जो अनमैनिफेस्ट है वो हमें दिखाई नहीं देंगी ना, वो परसेप्शन नहीं हो पाएंगी. तो दैट इज नोन एज अव्यक्त. एंड इट इज मेंशन इन द आवर वैदिक स्क्रिप्चर्स. The some creation is Vyakt in the Vyakt form and other is in Avyakt form. And it is also mentioned Akash have hidden qualities. So this concept clearly matches with the concept of the dark energy. कि आकाश के पास कुछ हिडन क्वालिटीज होती है, वो भी कह रहे हैं, साइंटिस्ट भी कह रहे हैं. एम्प्टी स्पेस में कुछ हिडन क्वालिटीज होती है, वही डार्क एनर्जी है. So this is the concept of the dark energy and dark matter. We found the answer in our Vedas. These are other some textual hints in Rig Veda. Hymn of creation is mentioned, और वहां पर वर्ड पूरा क्लियर मेंशन है जो कि संस्कृत में है. उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है तो वो डार्कनेस निकलती है. डार्कनेस वाज देयर, यानी बिग बैंग से पहले क्या था, डार्कनेस थी. ये मेंशन है वहां. तो उस डार्कनेस से ही तो आया ना, डार्क मैटर से सब कुछ क्रिएट हो गया. उसके बाद श्वेता उपनिषद के 6.8 में मेंशन है परा अस्य शक्ति विविधेर सूर्य थी, यानी सुप्रीम हैज वेरियस पावर हिडन एंड मैनिफेस्ट. कुछ हिडन पावर्स हैं और कुछ मैनिफेस्ट है. तो मैनिफेस्ट वाली हमें दिखाई देती है, हिडन पावर्स वी कैन नॉट परसीव. एंड देन भागवत पुराण, प्रकृति के गुणों के बारे में बात चलती है. जैसे कि यूनिवर्स की हमने पिक्चर देखी भागवत, अकॉर्डिंग टू भागवतम देयर आर 3 सटल एलिमेंट्स, मन, बुद्धि एंड अहंकार.
तो वो भी परसीव नहीं हो सकते। सो ये सत रज और तम की बात होती है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो दिस कैन नॉट बी परसीव. So there is always actually some hidden energies in matter. That's why science is unable to perceive it. But now I will end up my talk. I have already taken some few extra minutes. So I will end up with these quotes of Bhagavad Gita. अथवा बहुतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्ट अमरम विदम कृत्म स्मने काशेन स्थितो जन. यानी इस श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं भाई जो तो जैसे हमने डिस्कस किया तो काफी वास्ट है, यूनिवर्स अपने आप में वास्ट है, ये वैदिक स्क्रिप्चर्स अपने आप में वास्ट है, कोई स्टडी नहीं कर सकता, और हमारे पास तो भी पूरे वैदिक स्क्रिप्चर्स है भी नहीं, कुछ परसेंट बचे हैं, बाकी तो सब डिस्ट्रॉय कर दिए गए. और उसमें से भी मतलब हमारे पास हम पूरी लाइफ में भी पढ़ना चाहें तो वो पूरा एक भी कवर करना मुश्किल पड़ जाएगा. आजकल पहली बात तो किसी को इंटरेस्ट ही नहीं होता उसमें, अगर है भी तो वो अपनी पूरी लाइफ में भी उसको पढ़ता रहे तो वो कभी खत्म नहीं कर पाएगा. उस 15-20% अवेलेबल है, बाकी तो अवेलेबल ही नहीं. तो यहाँ पे भगवान जो है अर्जुन को बता रहे हैं फिर से कि बहुत एक्सप्लेन करते हैं भगवत गीता में. भगवत गीता हम सोचते हैं भाई कि ये केवल अर्जुन वहां पे फाइट होने वाली थी तो वहां पे उसको मोटिवेट करने के लिए बोली थी. नहीं, ऐसा नहीं है, वहां पे बहुत कुछ बोला गया था. यहाँ पे यूनिवर्स की क्रिएशन की भी बात बताई है और भगवान ने अपनी क्वालिटीज भी सारी बताई है. तो यहाँ पे एक लाइन बोलते हैं कि सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है, तुम इतना समझ लो कि मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ. यानी एक अंश मात्र, एक अंश मात्र का मतलब है कि वन फ्रेगनेंस. जैसे कि सन में से बहुत सारी लाइट्स आ रही है, तो उसमें से जो एक स्पार्कल लाइट का आता है वो उतने स्पार्कल से पूरी यूनिवर्स को अपने धारण कर सकते हैं. So Bhagavad Gita is very interesting actually scriptures. It talks about lot of topics. Everyone should must actually study this Bhagavad Gita. There is another verse from Bhagavad Gita itself. यहाँ पे है भगवत गीता के 7 चैप्टर में 6 वर्स है. अहम कृत्सन्न जगन्नाथ जगत प्रभवा प्रलयस्तता. कह रहे कि आई एम द क्रिएटर, द सस्टेनर एंड द डिस्ट्रॉयर ऑफ द ऑल वर्ल्ड्स. वही क्रिएटर है, वही सस्टेनर है और वही डिस्ट्रॉयर है. So this is almost end of my talk. I would just like to mention that whatever I have mentioned from the Vedas, this is not the purpose of the Vedas. भाई ये एक कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास इतने सारे सब कुछ पता है तो हम क्यों नहीं दुनिया को बता रहे. तो इसका कारण ये है कि whoever knows these things, उनका पर्पस वो है ही नहीं. यूनिवर्स को जानना है, स्पेसिस सबको जानना नहीं है. यहाँ पे भगवत गीता के फिर एक इस वर्स है 15.15. भगवान कह रहे हैं भाई जो वेदों का जो पर्पस है वो ये है ही नहीं कि आप यूनिवर्स को जानो, बहुत सारे ये नॉलेज लो. वो कह रहे हैं इनका सबका पर्पस है कि आप मेरे को जानो. तो यहाँ पे बोले वेदेश सर्व हरे में वेद्यु, यानी कि मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ. बाय ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन. तो बिकॉज जो भी स्पिरिचुअलिटी में लोग इन्वॉल्व रहते हैं उनका पर्पस ये होता ही नहीं है नॉलेज लेना, उनका पर्पस कुछ और होता है. दैट्स व्हाई एक्चुअली दे डोंट कम बिफोर द साइंटिफिक कम्युनिटी. और वैसे भी साइंटिफिक कम्युनिटी सबको ट्रस्ट नहीं करती, बिकॉज दे नीड दे एक्सेप्ट एनीथिंग विद द एविडेंस, विद सम एक्सपेरिमेंट और बाय सम थ्योरी. या तो थ्योरी बनाओ उसके बारे में कुछ, या एक्सपेरिमेंट से उसको प्रूफ करो. अब कुछ ये चीजें एक्सपेरिमेंट से कहाँ से प्रूफ होंगी, हो भी सकती है इन फ्यूचर, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी प्रूफ हुई हैं जो कि है. So let's see what will happen in the future. But here I will end with this quote. Whatever I have taken all the quotations from different scriptures, though I have used to explain cosmology, but this is not the purpose. Purpose is different. Okay, thank you very much for your kind attention. If you have any queries, then you can ask. I request all the participants. Hello? Am I audible? Uh,
I think there is no question. एक No, क्वेश्चन है no, यहाँ there is पर one इन चैट question. बॉक्स. हाँ, Sir, yeah, please. namaste. Namaste, sir. Yes, It namaste. was Namaste. very good session. You're so young and your vision is so good. Thank you very much. Vedesha Sarvayahameva Vedyo. Very nice one. Only would like to know your comments on Panch Mahabhutas. Very much in short, sir. Just Uh, your uh, few comments. you want to talk about Prithvi, Agni, Jal, Vayu, Akash, na? Just what you think So, Prithvi can be correlated with, just like that, in one word, that's all. Because already you have finished the session and it was so good, sir. actually, if you just let them, अब बाकी को छोड़ देते हैं, just अर्थ को ले लेते हैं. We are searching all the elements. गोपाल सर को पता होगा टोटल अब तक कितने एलिमेंट्स हम लोग सर्च कर चुके हैं. अराउंड 300 तो मुझे याद है कि पहले थे. तो वो सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट वो हमने अर्थ से लिए हैं, है ना. तो अर्थ Yes, इज सेल्फ सस्टेन्ड. इसके अंदर तो सब कुछ है. अब वो सारा किस तरह से है, इवन हमारी बॉडी, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी, ये शायद हमारी बॉडी इज द आवर बॉडी इज द मोस्ट गुड एग्जांपल फॉर योर क्वेश्चन कि हमारी बॉडी में सब कुछ है. हमारी बॉडी में ये 5 ये भी है, जैसे जो आपने स्थूल तत्व बोले, और इसमें माइंड भी है, इंटेलिजेंस भी है, फॉल्स ईगो भी है. और हम लोग इन चीजों का भी, मतलब हमारी बॉडी जो एक्चुअली सांख्य युग के अनुसार अकॉर्डिंग पूरे 24 एलिमेंट्स हैं. तो 24 एलिमेंट्स तो वो है जिसमें कि आपके 5 ये हो गए ग्रॉस एलिमेंट्स, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश. हमारी 5 सेंसेस हैं, 5 हमारे वर्क सेंसेस हैं, 5 हमारे जो है वो नॉलेज गेन सेंसेस हैं, 3 है पृथ्वी, 3 ये सटल एलिमेंट्स हैं, मन, बुद्धि और अहंकार. और जो 24th एलिमेंट है वो सोल है, जो कि भगवान का ही अंश माना जाता है. तो ये पूरा 24 एलिमेंट्स की हमारी बॉडी ही है. और हमारी बॉडी जो के जो ग्रॉस पार्ट है, जो भी है पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश से जो मिलकर बना है, इसको फंडामेंटल लेवल पे देखें तो दिस इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. ये तो इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है. और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसी टाइम के बने हुए जब का बिग बैंग बना हुआ है, क्योंकि ये चेंज नहीं होते. ये जो एक बार क्रिएट हो गए ना, ये उसी टाइम के, ये विद इन 1 सेकंड में क्रिएट हुए हुए एलिमेंट्स हैं. पूरे यूनिवर्स में जितना भी मैटर है वो उसी 1 सेकंड से लेके 3 मिनट में सारा क्रिएट हो गया था. बस वो चेंज कर रहा है, अपनी अपनी जो शेप चेंज कर रहा है या अपने सब्सटेंस को चेंज कर रहा है, बट इट रिमेन्स सेम. और ये सेम रहेगा. हमारी बॉडी जब डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो यही जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, फिर से मैटर में कन्वर्ट हो जाती है. So that's what I would like to mention about your queries. And there is a question in the chat box again. Excellent knowledge about the sir. What about the dark energy? Anything really exists? Yes, the dark energy मैंने काफी अच्छे से बताने की कोशिश की. साइंटिफिक कम्युनिटी ये तो कहती है कि डार्क एनर्जी एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये नहीं बताते कि वो क्या है. उनको पता ही नहीं. लेकिन हमने देखा कि वैदिक रेफरेंसेस में कुछ ऐसी चीजें हैं, वहां पे डार्क एनर्जी को डार्क एनर्जी नहीं बोला, उसको सटल एनर्जी बोल दिया या महत्त्व बोल दिया. तो वो उसको हम कह सकते हैं, क्योंकि नाम साइंटिफिक कम्युनिटी तो अपने हिसाब से नाम रखेगी उनका. हमारे वेदों में तो ऑलरेडी नेम है उनके, तो हम कोरिलेट कर सकते हैं भाई ये किससे जो है रिलेट हो रहा है. एंड नेक्स्ट योर क्वेश्चन इज एंटी मैटर रियली एग्जिस्ट. तो एंटी मैटर यस एग्जिस्ट. एंटी मैटर को अभी लेबोरेटरी में क्रिएट भी किया गया है, बट एंटी मैटर इज वेरी डेंजरस थिंग, यू नो. हमने पता है कि एटॉमिक बॉम्ब के बारे में हमने सुना है, न्यूक्लियर जो बॉम्ब होते हैं इनमें बहुत एनर्जी होती है. यही सेम टाइप की एनर्जी जो है यूनिवर्स के क्रिएशन के टाइम पे भी होती है. और उस टाइम पे भी मैटर और एंटी मैटर का ही जो है कुछ होता है जिसकी वजह से यूनिवर्स क्रिएट होता है. हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है उससे पहले क्या होता है. साइंस को नहीं पता 10⁻⁻43 सेकंड से पहले क्या हुआ, साइंटिस्ट एक्चुअली कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग अबाउट दैट. तो उस टाइम एंटी मैटर की कॉन्सेप्ट हो सकती है, बट बाद में होता क्या है कि जब क्रिएशन हो जाती है, 1 सेकंड से लेकर के 3 मिनट्स तक पूरा यूनिवर्स क्रिएट हो गया. बाद में सिर्फ वो एक्सपेंड होता रहा, ठंडा होता रहा. तो उस टाइम पे एंटी मैटर भी क्रिएट हुआ था, लेकिन वो सारा बैलेंस हो गया. मतलब जो कुछ हलचल होनी थी, मैटर और एंटी मैटर आपस में टकराने थे, उससे जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होनी थी, जो मैटर प्रोड्यूस होना था, वो सब हो गया, उसी टाइम पे हो गया. अभी एंटी मैटर जो है इसलिए कहीं देखने को नहीं मिलता है. I think I have tried to explain. और
other Yes, question sir. I am trying to find. Let me one more question, Gopal sir. Let me answer this also. Sir, I want to know about wormhole. Yes, actually, I wanted to include that slide, but because of the session was going very long, so I have excluded at the last moment. वॉर्म होल एक्चुअली क्या है, जैसे कि ब्लैक होल के बारे में भी एक पूरा हम सेशन कर सकते हैं कभी इन फ्यूचर। ब्लैक होल क्या है कि वेन एवर देयर इज ए स्टार डाई, जब कोई स्टार डाई करता है तो उसकी जो है 3-4 स्टेजेस होती हैं, वो डिपेंड करती है उसके अंदर मैटर कितना है। तो अगर कम मैटर है तो वो व्हाइट डॉर्क में कन्वर्ट हो जाता है। अगर उसके अंदर बहुत ह्यूज मैटर है, जैसे चंद्रशेखर लिमिट है 1.4 सोलर मैसेज से अगर ज्यादा है, तो वो न्यूटन स्टार में भी कन्वर्ट हो सकता है, ब्लैक होल में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो जब ये ब्लैक होल कॉन्सेप्ट इज क्या है कि ब्लैक होल इज ए बॉडी, एक तरह की बॉडी है और डेंस मैटर है उसके अंदर, इतना डेंस मैटर है। ब्लैक होल की बात नहीं करते, उससे कम डेंस मैटर की चीजें यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं, दैट इज नोन एज न्यूट्रॉन स्टार। तो न्यूट्रॉन स्टार को अगर हम अपनी एक टेबल स्पून, मतलब जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं, अगर वहां पर उसकी एक चने के बराबर भी अगर मैटर हो, तो उसका जो मास होगा वो बिलियंस ऑफ बिलियंस किलोग्राम होगा। अब ये बड़ा इनडाइजेस्टिव है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि जो एटम है, एटम इज 99.999% एम्प्टी। कोई भी एटम है किसी भी चीज का, चाहे जितने, जैसे कि हम बात करें ना, जो केमिस्ट्री की जो टेबल होती है उसमें 300 एलिमेंट्स हैं, उसमें चाहे कोई सा भी आप एटम ले लीजिए, उस एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, लेकिन उसमें 99.999% प्लेस एम्प्टी है। बीच में सेंटर में आपका न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ है। इलेक्ट्रॉन्स की भी बड़ी मिस्ट्री है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, क्योंकि वो वेव पार्टिकल भी शो करते हैं और मासिव भी है उनके अंदर। तो वो अलग अलग दुनिया है उसमें। अगर अभी हमने बड़ी चीजों की बात की, अब छोटी चीजों की बात करें तो छोटी चीजें अपने आप में एक पूरा वास्ट, मतलब एक तरह से इतनी कंसाइज है, इतनी छोटी है कि उसके बारे में भी परसेप्शन जो है करना बहुत डिफिकल्ट है। बट यस, द ब्लैक होल इज वेरी डेंस क्वांटिटी, इवन लाइट कैन नॉट एस्केप। अब लाइट क्यों नहीं एस्केप कर सकती, ये भी वही आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी है, क्योंकि उस ब्लैक होल के चारों तरफ लाइट ज्योमेट्री इतनी ज्यादा कर्व्ड रहती है कि एक सर्टेन बाउंड्री के बाद, जिसको हम बोलते हैं होराइजन, उस होराइजन के बाद अगर लाइट उसके अंदर एंटर कर जाए तो उसमें से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। ये आपका ब्लैक होल है। तो ऐसे ही वार्म होल, ब्लैक होल के बाद एक व्हाइट होल की कॉन्सेप्ट होती है। व्हाइट होल एक कॉन्सेप्ट है, एंड सो फार इट इज ओनली प्योरली थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। जैसे कि ब्लैक होल भी अभी आज से 30-40 साल पहले तक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट थी, लेकिन अभी ब्लैक होल की हमने फोटो ले ली, 2029 में इसकी पिक्चर आ गई और वो उनको भी नोबेल प्राइज मिला 10 अप्रैल 1919 को। ब्लैक होल की पिक्चर आ गई थी। और जो व्हाइट होल है, व्हाइट होल एक ऐसी चीज है जिसमें से कोई चीज मतलब बाहर निकल गई, उसके अंदर मतलब कुछ अंदर नहीं जा सकता। ब्लैक होल के जस्ट अपोजिट, उसके अंदर कुछ भी अंदर डालोगे जाएगा ही, सब कुछ बाहर निकल जाएगा। तो ये माना जाता है, ये मतलब एक एनालॉजी जैसे, जो बिग बैंग की पॉइंट है, बिग बैंग सिंगुलरिटी है, दैट इज एक्चुअली द व्हाइट होल, क्योंकि उसमें से एक बार सब कुछ बाहर निकल गया, अब उसमें से कुछ अंदर जा ही नहीं रहा। तो जो पिछला यूनिवर्स था, अगर हम साइक्लिक यूनिवर्स की बात करें, अब जो हमारा यूनिवर्स है ये कभी ना कभी एंड होगा, सपोज बिग क्रंच में एंड होगा, यानी फिर से कोलैप्स हो जाएगा एक पॉइंट पे, तो ब्लैक होल टाइप की क्वांटिटी की चीज बन जाएगी। फिर वहां से क्या होगा, फिर से व्हाइट होल बनेगा। व्हाइट होल में से क्या होगा, सब कुछ बाहर निकल जाएगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं जा सकता। तो ये दिस इज साइकिल, ये दिस इज ओनली थ्योरी। अभी तक किसी भी, ना तो एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ है और ना ही कोई थ्योरी, मतलब जब तक एक्सपेरिमेंट से प्रूफ नहीं होगा तो थ्योरी तो आप बना सकते हो ऑन पेपर, बट यू डोंट नो। नाउ कम टू द वॉर्म होल। तो वॉर्म होल क्या करता है कि जैसे कि ज्योमेट्री, जैसे मैंने बताया मैटर चेंज द ज्योमेट्री अराउंड इट। तो एक ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं यूनिवर्स में, स्पेस में, ऐसे ऐसे पॉइंट हो सकते हैं कि अगर आप वॉर्म होल में एंटर कर गए तो आप यूनिवर्स के किसी दूसरे पार्ट में निकलोगे जाकर के, या हो सकता है आप दूसरे यूनिवर्स में ही पहुंच जाओ। मतलब दो यूनिवर्स की ज्योमेट्री वॉर्म होल से कनेक्टेड हो सकती है। तो दिस इज वॉर्म होल। होप आई हैव explained. Any other queries? Yeah. Okay, actually the things are very vast, so it cannot be covered in 1 hour. I have skipped many things.
maybe if there is some in future some other conference, workshop or seminar, then we can take some things in details, because the audience should also be comfortable with that. Otherwise कुछ लोगों के लिए काफी बोरिंग हो सकता है जिनको साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ना हो. Sir, it's a very excellent session. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरीके का एक सेशन और भी दें, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं इट्स एन एक्सीलेंट सेशन और चैट बॉक्स पूरा भरा पड़ा है. थैंक्स और आपके बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स के. जैसे एक क्वेश्चन मेरे मन में भी आ रहा है, तो इसमें जैसे आपने एक वैदिक फिलॉसफी में क्षीर सागर का नाम लिया, तो क्षीर सागर अगर हम मॉडर्न साइंस में देखें तो क्या है, व्हाट इज क्षीर सागर? सर मॉडर्न साइंस में एक्चुअली क्या है कि ये चीजें परसीव ही नहीं कर सकते. अभी जैसे हमने जब स्टार्टिंग में आई टॉक्ड अबाउट द वास्टनेस ऑफ द यूनिवर्स, तो साइंटिस्ट को अभी तक जो चीजें ऑब्जर्व होती हैं वो दूर की गैलेक्सीज ऑब्जर्व होती हैं, और गैलेक्सी भी कैसी दिखाई देती है, वो भी एक स्टार की तरह दिखाई देती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है. और इवन गैलेक्सी भी विजिबल नहीं होती, गैलेक्सी के क्लस्टर्स होते हैं, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज एट कलेक्टेड एट सम प्लेसेस. एक जगह अगर इकट्ठी है तो वहां से एक लाइट आ रही होगी, वो एक पॉइंट की तरह दिखाई देगी. और उस गैलेक्सी के अंदर क्या है, आई हैव ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड वन स्लाइड एक्चुअली, जिसमें कि 27 नक्षत्र की बात होती है. और उन नक्षत्र को हम रिलेट करते हैं, मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी कैन ऑल्सो से, उनको बोलते हैं क्लस्टर्स एंड सुपर क्लस्टर्स. तो क्लस्टर्स मीन्स क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज, जहाँ पे कि ग्रुप मिलते हैं, कुछ गैलेक्सीज के ग्रुप मिल गए, फिर अनदर गैलेक्सीज के ग्रुप मिल गए. तो अभी साइंटिस्ट उसको क्या मान रहे हैं, जस्ट उसको वही क्लस्टर्स माने, क्योंकि उनके लिए वो पॉइंट है. अब वो पॉइंट में क्या देखेंगे, उन्हें वो पॉइंट नजर आ रहा है, ये भी बड़ी चीज है. अब उस पॉइंट के अंदर क्या है कुछ भी कह नहीं सकते. अगर हम फोर्थ प्लेनेटरी सिस्टम की बात करें, जैसे कि वैदिक हाँ फिलॉसफी में जो क्षीर सागर है, उसमें तो दूध का सागर है, जिसमें कि पवित्रता हाँ मतलब प्योरिटी से, और वहां राइट. विष्णु भगवान लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं, ऐसा कुछ है. तो क्या इसमें गैलेक्सी में भी ऐसा कुछ दिखता है? एक्चुअली 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 अभी शायद साइंटिस्ट को तो क्षीर ये सागर तो नहीं मिला, बट एक अभी वाइन का ओशियन जरूर मिला है उनको. एक ऐसी जगह मिली है जहाँ पे बहुत सारी शराब भरी पड़ी है. अब हो सकता है उनको वो मिल गया तो कभी वो भी कुछ पता चले, उसके इंग्रेडिएंट से पता चलता है कि वहाँ पे कुछ अल्कोहल भरा हुआ है. और ये हमें पता है कि वैदिक स्क्रिप्चर्स में कहीं ना कहीं जरूर मेंशन होगा कि कहीं पे ऐसा लोक है जहाँ पे भैया शराब की नदियां बहती हैं. तो इसी तरह हो सकता है कहीं दूध की भी नदी बहती हो, वही क्षीर सागर है. बट एक्चुअली साइंटिस्ट के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उनके लिए वो जैसे बहुत एक टाइनी चीज है. जैसे कि पहले लोग अव्यक्त, जैसे आपने वर्ड यूज किया था, तो ये हाँ चीजें अव्यक्त हैं, और अगर हम अद्वैत अवस्था में जाएं तो आई थिंक वी कैन फाइंड समथिंग. अद्वैत हाँ अवस्था में जब हम योग के द्वारा जो है अद्वैत यस अवस्था में यस जाएं, राइट 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 कि हम राइट जो राइट. है एक तो समष्टि मन है जो कि समग्र है, वो दूसरा व्यष्टि मन, हम लोग व्यष्टि मन है, एक इकाई है मन की, और उस मन की एक इकाई से जो भी हमारे अंदर विचार आता है, तो वही मेरे को आपको, जैसे अभी आपने बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग मॉडल के ऊपर बताया, ऐसे ही अगर हमारा एक कॉस्मोलॉजी मॉडल या वैदिक कॉस्मोलॉजी हो जाए, दैट इज एक्चुअली उसमें सर, हाँ वी कैन टॉक अबाउट दैट लेटर कि हम किस पे कर सकते हैं. बट जो आप कौन बता सी रहे हो कि हाँ कौन सी साइंटिस्ट डिजाइन? मतलब इस चीज को जो परसीव करने का मेथड है वो साइंटिफिक मेथड तो नहीं है, बट यस स्पिरिचुअलिटी इज दैट पॉइंट. जो लेकिन बट जो लोग इसको फॉलो करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, उनका एक्चुअली मोटिव वो नहीं रहता कि मेरे को ये चीजें ढूंढनी है, सर्च करनी है. उनका मोटिव फिर दूसरा रहता है, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में मेंशन किया, वेदों का पर्पस वो है ही नहीं कि भाई हम ये चीज ढूंढने चले कि ये का क्या है. फर्स्ट में बताया था वो ठीक है, हमें यूनिवर्स के बारे में नहीं जानना, हमें अपने बारे में जानना है कि हम अपने वी नो बेटर अबाउट आवर सेल्फ, और जो हमारा गॉड से रिलेशन है उसको हम जाने, वो ज्यादा बेटर राइट है राइट दूसरे. राइट राइट हम्म, एग्जैक्टली. हाँ दिस इज द क्योंकि मेन पर्पस. हमें पता ही नहीं है हु एम आई. हाँ, एक्चुअली वेदों का पर्पस ही यही है, अपने आप को जानना, भगवान को जानना, उनके साथ हमारे रिलेशनशिप को जानना. जी दिस जी इज द जी. मेन पर्पस ऑफ द
Vedic scriptures. कुछ लोगों ने जान भी लिया, जैसे हनुमान जी ने भगवान राम को जान लिया। ऐसे ही बहुत से लोग जो भक्त हैं उन्होंने अपने इष्ट देव को जान लिया। एक्चुअली जो जान लेता है फिर उसको ये सब चीज डिटेल की जानकारी का कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता, एक पॉइंट ये भी है। फिर उसको कुछ और ही नजर आ जाता है ना। जितने भी जी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल दिया जाता है। आप मतलब जी। ध्रुव लोक है, जैसे कि आप ध्रुव हाँ, लोक को यहाँ क्या है, साइंटिस्ट लोग तो उसको पोलर स्टार बोल देते हैं कि पोलर स्टार जी, है, पूर्ण लेकिन वैदिक में के तो लिए एक कहा जाता है कि बहुत कम उम्र में मतलब ईश्वर को प्राप्त किया, सबसे कम उम्र में। राइट राइट। एक और लास्ट में क्वेश्चन आया है, शेयर हाउ वी कुड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द लेवल ऑफ मैटर इन लैब, लाइक परसेंट ऑफ अर्थ, परसेंट ऑफ वाटर एंड परसेंट ऑफ तेजा एंड परसेंट ऑफ वायु। इसको कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप लैब में, कि कितना, मतलब किस चीज में ढूंढना चाहते हैं आप अर्थ में, ये इंग्रेडिएंट्स आपको किस जगह चाहिए, क्योंकि सर परसेंट ऑफ अर्थ का दवाई में दवाई में। ओके हाँ, ये तो हमारे जड़ी बूटियां है ना गोपाल सर, उसमें। गोपाल सर जी ज्यादा सर, आंसर इसको अच्छे से कर पाएंगे, ही इज द पर्सन ऑफ केमिस्ट्री, मैं कि ये बता कैसे सकता। इंग्रेडिएंट्स को पता करते हैं किसी सब्सटेंस में, कैसे परसेंटेज निकालते हैं। हाँ, जैसे कि मेरा विचार ये है कि जो हमारे ब्रह्मांड में है वही चीज हमारे पिंड में है। तो बट सर का क्वेश्चन ये है कि हम उसका एग्जैक्ट परसेंटेज कैसे फाइंड करें। अब उसमें भी कुछ है, 75% वाटर है, तो कुछ परसेंट सॉइल है। तो हम उसका एग्जैक्ट परसेंटेज ऐसे ही हम अपनी बॉडी में भी फाइंड कर लें कि हमारा कितना परसेंट वाटर है, क्योंकि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। वायु भी है, पृथ्वी भी है, अग्नि भी है, और आकाश तत्व भी है, सभी है। थैंक यू सर। ठीक है विजय सर, आपने आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन जो है अपना प्रेजेंटेशन दिया, और हम सबको इतना ज्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, और सभी हाँ लोग ये मतलब आपकी एक तारीफ कमेंट, कर रहे हैं। और एक पब्लिक, कमेंट्स भी आया है इसमें, वेरी रिलेवेंट टॉपिक फॉर टुमारोज, बिकॉज टुमारो इज कृष्ण जन्माष्टमी। यस वेरी राइट, वी कैन सी फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं, कुछ भी कहना जो है शब्द बौने पड़ जाते हैं। और कुछ भी कहना सूरज को दिखाने के समान है, और कुछ कहते बट बनता नहीं है। क्या कहें आपसे कि आपने इतना बट कीमती समय दिया। बट सर और वी आर नथिंग, वी आर नथिंग इन ये, कंपेयर टू द हाँ, इतनी बड़ी एक बार ये यूनिवर्स की जो होल क्रिएशन है, इस मैं होल हैंड क्रिएशन में ही अपनी आइडेंटिटी को ढूंढना। अनम्यूट कर दीजिए डॉक्टर बहादुर सर को, ये कुछ कहना चाह रहे हैं। ये हमारे आईकेएस इंचार्ज हैं डॉक्टर बहादुर सर। ओके यशवंत जी ओके। प्लीज अनम्यूट टू डॉक्टर बहादुर सुब्रमण्यम। आ, ಇದು ಕಟ್ಗೆ ओपन हाँ वीडियो वीडियो हाँ। आ, नमस्ते सर। आप तो हाँ नमस्कार सर। you have done a wonderful research on these topics. I am very थैंक्स वेरी मच happy सर। that ओके थैंक यू। such a wonderful paper you have presented, and I once again want to thank you, our Gopalji, also for arranging such wonderful persons for this FDP, and I wish you a very big, bright future in the, not only in the mathematics like there, in the IKS also, because you have done a lot of homework for making this presentation in a pakka manner. Thank you for your थैंक यू वेरी मच presentation, सर। and thank you Gopalji for the arrangements. Okay, थैंक यू all the थैंक best. सर। तो थोड़ा सिंपल जो है हम लोगों को अंडरस्टैंडेबल ऐसा कुछ हो जाए तो इसका एक पीपीटी हम लोगों को शेयर कर दे, जिससे हम लोग उसमें थोड़ा होमवर्क करें और फिर दोबारा आपसे मिलें, ऐसा कुछ। श्योर श्योर सर। एक्चुअली जो ये थ्योरी है, अभी से बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहा होगा कि भाई जो साइंटिस्ट की थ्योरी है भाई उसके ऊपर हम कितना रैली कर सकते हैं, कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअली जो अब ये पूरा एक वास्ट टॉपिक है कि जनरल रिलेटिविटी ऑलमोस्ट 100 साल से ज्यादा हो गए इसको, 105 साल से ज्यादा हो गए, 107 साल हो गए इसको लॉन्च। लेकिन 107 साल में इसने जो जो प्रिडिक्शंस की थी वो सारी जो है
एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हो चुकी हैं। और वो उस जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, अगर वो एक एक एक्सपेरिमेंट्स को भी अगर हम एक एक टॉक में डिस्कस करें तो उसके ऊपर मतलब टाइम कम पड़ जाता है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट्स इतने सटल हैं, इतने कैसे पॉसिबल है। एक जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि ये बताती है कि आप हम सब जानते हैं, सबने साइंस 10th या 12th लेवल तक पढ़ी होती है, 10th लेवल तक ये मान लेते हैं कि लाइट जो है वो वेव्स की तरह भी करती है और पार्टिकल भी नेचर है। लाइट का दोनों नेचर है, वेव्स भी है और पार्टिकल भी है। यानी उसके अंदर मास और मास है नहीं, मासलेस है। फोटॉन्स में कोई मास नहीं होता, ओनली एनर्जी है। तो न्यूटन देखिए किस तरह से गलत साबित हो गए। न्यूटन ने बोला कि दो मैसिव ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करते हैं। आइंस्टीन ने जो कॉन्सेप्ट दी थी वो सबसे बड़ी चीज तो ये थी, आइंस्टीन ने बोला कि जो हैवी ऑब्जेक्ट है, मैसिव ऑब्जेक्ट है, वो लाइट को भी अफेक्ट कर देगा। ये हमने ना सुना कि ब्लैक होल में लाइट भी चली जाती है, वो बाहर नहीं आती। भाई जब मैसिव ऑब्जेक्ट को केवल मैसिव ऑब्जेक्ट ही अट्रैक्ट कर सकता है तो लाइट तो मास है ही नहीं, वो तो मासलेस है, तो वो कैसे उस पर इफेक्ट डालता है। तो यही तो आइंस्टीन की मेन एक्चुअली सक्सेसफुल थी। तो ये फर्स्ट था, दिस वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंटली प्रूवन, जो जिससे कि आइंस्टीन जो है रातों रात जो है वो क्या बन गए थे, सुपर हीरो बन गए थे, क्योंकि उन्होंने बताया कि मैसिव से लाइट भी बेंड हो जाती है और इसको प्रूफ कर दिया। अब वो प्रूफ कैसे किया, दिस इज इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। Sir, I am a biologist basically. Can I ask one question, sir? Yeah, sure. Yeah, sir. Just like we teach in like photosynthesis, also the light energy converts into chemical energy. So, like the chlorophyll is working like a chemical which is absorbing the light energy and converting it to chemical energy. So, Yes, how yes. that excite the photons? I just wanted to know that because we have never studied this in details. Like how the sunlight. Yes, I got your query. This is a Yeah, very I'm simple just moving concept. my direction towards ETS. Yeah. Right. Actually, I have not also covered that, but this is the all part of this research. We have to study the photons. जैसे कि मैंने आपको स्टैंडर्ड पार्टिकल फिजिक्स में दिखाया, देयर इज ए पार्टिकल फोटॉन्स। इससे पूरी यूनिवर्स का Okay. रेडिएशन बना हुआ है। ये रेडिएशन आपको Okay. जैसे हमारे जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जैसे अभी हम ये लेक्चर कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, तो जी इसे कहीं जी वायर से कनेक्ट नहीं है, ये वेव्स के थ्रू जा रहा है। तो ये वेव्स कौन सी जी हैं, ये रेडियो वेव से लेकर के ये आपकी जाती हैं गैमा रेस तक। रेडियो वेव जो है काम ओके आती है, जैसे कि हमारा रेडियो जैसे टीवी में यूज हो रहा है, रेडियो में वेव यूज हो रहा है, वाईफाई में यूज जी हो रहा है। इसके बाद आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आता है, जैसे कि आपने माइक्रोवेव ओवन हमारे घर पे होता है, उसमें भी फोटॉन्स होते हैं। उसके बाद अगर अब आप और थोड़ा आगे तो जो सन से लाइट आ रही है, उसमें हीट भी होती है और उसके अंदर लाइट भी होती है। तो उसके अंदर अलग ओके अलग वेवलेंथ होती है, कुछ के पास हीट है और कुछ के पास लाइट है। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। ये भी एक अलग से टॉपिक है कि जो सारी अल्ट्रा वायलेट रेज है, एक ऐसा अरेंजमेंट है अर्थ के एटमोसफेयर में, वो हम तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। वो सारे जो गैमा रेज हैं, सारे एक्स रेज हैं जो यूनिवर्स से आ रहे हैं, वो सारे वहां पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद आप बात करते हैं कि जो ये बहुत ज्यादा डेंजरियस है, जैसे कि आपने हॉस्पिटल्स में गए होंगे तो प्रेग्नेंट लेडी को जो बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना होता है कि कहीं भी एक्सरे वाले रूम के आसपास जाने के लिए। बिकॉज तो वो पेनिट्रेटिंग है ये सारे यस, तो एक्चुअली भी तो मतलब म्यूटेशंस भी कॉज कर देते हैं जबकि सर राइट म्यूटेशन के तो अभी तक म्यूटेजेंस एग्जैक्टली अभी तक अंडर रिसर्च है कि हाउ डज इट ब्रिंग लाइक जो प्रोटो हाँ ऑन्कोजीन्स है उनको कैसे एक्टिवेट कर देते हैं आई मीन दे ब्रिंग द चेंज इन द जीन्स ना सो यस दिस इज ये this is also written in the books like this is also still not clear ki how this like affects someone it does not affect other person हाँ, तो बिकॉज एक्चुअली इसके लिए मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा था, इस तरफ में मैं गया तो मैंने आई फाउंड दैट एक्चुअली ये डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ दैट रेज। अगर उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो वो हमारी बॉडी पे भी डिपेंड करता है। क्या अगर उसके सपोज एक्चुअली हमारी बॉडी क्या है, सारा एलिमेंट से मिलके बनी है। हमारे अंदर जैसे अर्थ वाटर फायर एयर ये सारी चीज है। अब जैसे कि हमारा बिल्कुल कोई भी सेल है, बॉडी का कोई सेल है, वो सेल भी जो हम्म, है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलके बना है, उसने कुछ वहां बिल्कुल पे एलिमेंट्स बना रखा है। अब आप उसके अंदर अगर स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी कर देंगे या एक इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देंगे तो उसका चेंज हो जाएगा। अगर आपने केवल एक सेल को नुकसान पहुंचा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ बिलियंस, पता नहीं कितने गीगा ऑफ ट्रिलियंस
सेल्स हैं। तो लेकिन अगर यही जो है ज्यादा क्वांटिटी में कर दिया जाए तो उससे जो म्यूटेशन हो सकता है, ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट थिंग इज द इंटेंसिटी एंड सेकंड थिंग इज द क्वांटिटी, की कितना हम ले रहे हैं। तो जो आपका जो क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस वाला, उसमें भी वही है कि उसके अंदर जो पहले जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो कुछ और है। जो उसने जैसे कोई ट्री है, प्लांट है, उसने रूट से कुछ एलिमेंट्स को लीव्स में पहुंचा दिया। अब उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ और है, केमिकल स्ट्रक्चर कुछ और है। जैसे ही उसके ऊपर एक फोटोन पड़ता है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का, अगर आप इसके ऊपर जो है ज्यादा इंटेंसिटी का डाल देंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा सेल। अब जैसे कि कहते हैं सारे प्लांट्स के लिए धूप जरूरी है, क्यों जरूरी है? इसीलिए क्योंकि अगर उसके अंदर उसी इंटेंसिटी का जाएगा तब फोटोसिंथेसिस होगा। क्योंकि जो बोर एटॉमिक मैंने मॉडल बताया, मॉडल है, वो हाँ जी। किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स करते हैं मूव, उसकी ऑर्बिट को क्या करना होता है, एक्साइट करना होता है, तो वो किसी दूसरी ऑर्बिट में चला जाता है। जैसे ही दूसरी हाँ सर, ऑर्बिट में तो चला वो जाता है पानी को ही तो तोड़ती है ना, दे आर ब्रेकिंग वाटर ओनली ना एंड कन्वर्टिंग लाइक रिलीजिंग हाइड्रोजन आयंस, मतलब प्रोटॉन ही तो इकट्ठा कर रहे हैं ना ये प्रोसेस हाँ हाँ, करने के लिए भी। उस केस में क्या होता है, फिर एनर्जी रिलीज होती है, इन सारे प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी प्लांट्स के लिए यस, यूजफुल यस, होती है। राइट, राइट। चलो, थैंक यू सो मच सर, ये तो बहुत बड़े सारे टॉपिक्स हैं और मेरे मन में इतने सारे मैथमेटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब मेरे मन में मेंडल भी आ रहा है, बिकॉज आपने पढ़ा होगा कि मेंडल का तो काम सारा, मतलब पहचान ही नहीं पाए थे एट दैट टाइम। मेंडल व्हेन गेव द जेनेटिक्स एट दैट टाइम, मैथमेटिक्स वाज नॉट यस यस, क्लियर टू देम, द पीपल कुड नॉट रिलेट बायोलॉजी विद मैथमेटिक्स, एंड दैट इज व्हाई उनके मरने के 100 साल के बाद उनकी रीडिस्कवरीज हुई हैं, एंड नाउ ही इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स व्हेन ही इज नो मोर। सो मैथ्स तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल चीज है सर। आई रियली अप्रिशिएट योर डॉक्टर इन मैथमेटिक्स, एंड दिस इज रियली लाइक नाइस टू सी यू ऑनलाइन। कभी मौका मिलेगा तो सर डीयू आके केएमसी में आपसे जरूर मिलूंगी। थैंक यू वेरी मच आयुष, यू आर वेलकम, ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच सर। आई वुड लाइक टू इंटरेक्ट विद यू। चलो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल, एंड सर यू एज वेल, and थैंक thank यू you वेरी for मच एंड making सेम the टू यू। evening great. Yeah, okay sir, thank you. Maybe some participant getting bored, so I think you should end up with the session. Yes sir, I think people are like getting like maybe most of the people are not from the science background on. Yes, that's why actually I'm saying. Yeah. Yes, mostly audience are especially from education and rehabilitation, a multidisciplinary background. So those who are interested in this topic may attend. Okay, you can always contact me personally through Gopal sir or directly, whatever the for any discussion or any open conversation. Thank you sir, I'll definitely get back sir. Thank you. Sure. Okay, Vijay sir. Now, Yes, thank you sir for giving me the opportunity to speak among the faculties. It is always I always actually excited to share my knowledge with the others. So my purpose is only that these should actually missing something. This should actually turns towards our Vedic scriptures and try to understand what is the purpose of that. yes sir. Now I give vote of thanks. It is my privilege to extend our heartfelt gratitude to Dr. Vijay Singh for delivering such an enlightening and thought-provoking lecture on Big Bang cosmology model. Thank you, sir. Thank you very much, sir. We meet again. Sure. We will meet again. Thank you. And happy Janmashtami to you in advance. Yes, happy Janmashtami to all of you. Thank you.
कल भी आप चाहें तो आ सकते हैं, कल भी ऑनलाइन 7 से 8 मीटिंग होगी, आप आना चाहें आ सकते Yes, yes, I will come. Definitely, I will come. हैं। ठीक सर, ओके, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट, थैंक यू टू द IT टीम। यशवंत जी, यशवंत जी, चले गए क्या?